हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। आज हम कुंभलगढ़ पहुंचे हुए हैं जहां पर हम राइड करेंगे दो पुरानी नई बाइक्स। पुरानी क्योंकि वी ऑल नो जावा वाज देयर इन इंडिया एंड देन प्रोडक्शन स्टॉप्ड, और अब एक बार फिर से इसकी वापसी हो रही है। और सवाल हमारा यही होगा इस दोनों को राइड करने के बाद दैट द मिलेनियल जनरेशन विच दे डिडंट सी दिस बाइक ऑन रोड्स बट दे ओनली हर्ड स्टोरीज अबाउट देम। और अब जब ये बाइक आई है तो उस जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए इन दोनों बाइक्स में कुछ खास है या नहीं। First thing first, we are riding both the bikes which are basically prototypes. The first lot which is produced at Java's plant, and there are certain small issues as far as refinement is concerned, but the company is saying since this is a prototype, the process of betterment, improvement is still on. So whatever I say or give my opinion about as far as these two bikes are concerned, they are also kind of suggestions for the company and for you to keep things in perspective whenever you're talking about this bike or seeing this video or getting to know this bike better. One aspect you really wanted to know about, how does this sound? And now, let's And this is how this new Java sounds. Obviously different from the earlier one, the previous one, the one which everyone keeps talking about. But yeah, this does sound grunty, and company has made lots of effort to make it sound like this, which somehow resembles the older one. But obviously we know those were two-stroke ones. This is four-stroke one. So the result, I think, is interesting, and it sounds really grunty and very forceful. So it's nice. So now I'll start with the looks, and that is something which is beyond doubt. I don't think anyone would disagree. सबसे खूबसूरत बाइक्स में से एक आपको ये लगेगी. And the moment you see these two bikes, you will fall in love with it, I think, because most of the classic bike lovers they are going gaga over this look. और इसमें आप वो सारे elements देखेंगे जो इसे उस ओरिजिनल जावा से रिलेट भी करता है और साथ में इसे मॉडर्न भी बनाता है. चाहे सबसे ज़्यादा उसमें अगर रोल कहें तो आई थिंक द शेप ऑफ इंजन जो आपको रिमाइंड करेगा उससे पुरानी जावा का. देन दिस हैज़ ट्विन एग्जॉस्ट, और परफॉर्मेंस के हिसाब से बात की है, बट लुक में ये ऑथेंटिसिटी लाता है. द काइंड ऑफ जावाज एंड एसडीज वी यूज्ड टू सी, और वही वाला लुक इसमें फील कंपनी ने जिस तरह से इंटीग्रेट किया है, आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल. एंड यू विल लाइक मोस्ट ऑफ द राइडर्स whoever has been giving their reaction on this bike's looks. I think everyone is liking it. So that aspect is totally taken care of, and Java has done fantastic work. Look at this chrome version which we are riding today. This is the white and chrome combination, and these golden lines, they are basically hand painted. This headlamp again, which will remind you of the original Java SG, and this one has this special touch, the beak also. And look at this finish, whole not that glossy, whitish, pearlish white kind of feel to it, and this continues here also. और अब इस एग्जॉस्ट की हम अगर बात करें, very beautiful looking chrome यहाँ पर इस्तेमाल इसमें हुआ है. And what we got to know that for enthusiast company is also working on different settings as far as exhaust notes are concerned. So your same bike can sound different from your fellow bikers. So this is something which enthusiasts would like, I think. And engine mapping का भी option इसमें दिया गया है जिससे कि अलग अलग engine behavior होगा. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो हिस्सा मुझे काफ़ी interesting इसका लगा, that is the riding posture. और riding posture अगर हम इसकी बात करें, this is the classic one. This is a relaxed one and very classic kind of feel to it. बहुत ज़्यादा आप आगे लीन नहीं हैं और बहुत ज़्यादा आप लेट बैक भी नहीं हैं. सो ये आम सिटी राइडिंग के लिए तो बहुत ही आइडियल है, और स्लो क्रूजिंग में जब आप जाएंगे वो आई थिंक आइडियल होगी इसके पोजीशन और इसकी फील के साथ की जो इसका इंजन का बिहेवियर है उसके साथ. सो यू मस्ट बी वंडरिंग वेयर इज 42, बट आई विल गो टू दैट बाइक लेटर. फर्स्ट लेट्स डिस्कस द इंजन ऑफ दिस बाइक व्हिच शेयर्स कंपोनेंट्स विद द मोजो, व्हिच इज 300cc इंजन, बट दिस वन इज 293cc इंजन. पावर आउटपुट इज 27 bhp. टॉर्क आउटपुट इज़ 28 न्यूटन मीटर, और ये लिक्विड कूल्ड है. 6 स्पीड इसमें ट्रांसमिशन लगा हुआ है. वी नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट दिस जावा, बट ओनली थिंग विच वी डोंट नो इज़ हाउ इट हैंडल्स, हाउ इट परफॉर्म्स ऑन द रोड. लेकिन पहले 42.
One surprise element in this whole Java package is this 42, as the company is claiming कि ये कभी उनके पाइपलाइन में था नहीं. उन्होंने इस बाइक को बनाने के बारे में शुरुआत में सोचा नहीं था. Somehow this bike built itself. और ये दरअसल एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है जो क्लासिक जावा की लुक और फील है. डिज़ाइन किस तरह से आज के वक्त में होता अगर वो जावा होती तो somehow this represents that kind of philosophy. और यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें, so this is ऑब्वियसली इन्वर्टेड स्पीडो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा और ये थोड़ा ऑफ सेंटर है. हेडलैम्प इसका थोड़ा सा नीचे है ही, प्लस द हैंडल बार इट्स लिटिल ब्रॉडर और जो स्विचेस और यहाँ पर हमें कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं. फिट फिनिश मुझे अच्छा लग रहा है, सॉलिड है, इट्स क्लीन एंड वेरी नीट काइंड ऑफ डिज़ाइन. तो फिनिश यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल रहा है. और यहाँ पर अगर टैंक को आप देखें, द काइंड ऑफ लाइन्स वी आर सीइंग हियर, ये हैंड पेंटेड है और कंपनी ये कह रही है कि ये इसे बरकरार रखेगी. थोड़े से ऐसे टच जो थोड़े पर्सनल हों, थोड़े ख़ास हों, थोड़े एक्सक्लूसिव हों इस बाइक के लिए. और जो डिज़ाइन से फिर से आपको उसी फील की याद दिलाएगा. इंजन का जो डिज़ाइन है, जिस तरीके का शेप है, वो आपको बताएगा कि हाँ किस फैमिली को बिलोंग करती है. और जो इसकी राइडिंग पोजीशन खासकर इसके हैंडल बार की वजह से आपको ये थोड़ी ज़्यादा लीन इन करके चलाने वाली बाइक आपको लगेगी. ये थोड़ा ब्रॉड है और आप झुककर जैसे स्क्रैम्बलर में जिस तरह की पोजीशन में आप आमतौर पर चलाते हैं उसी का एक तरह से इंटरप्रिटेशन आपको लगेगा. जो बेस है दोनों ही बाइक्स का सेम है और इंजन भी सेम है, लेकिन थोड़ी सी ज्योमेट्री अलग है. थोड़ा जैसे मैंने बताया राइडिंग पोजीशन थोड़ा सा अलग है और ऑब्वियसली जो इनकी सेटिंग है थोड़ी सी जुदा है. दैट मीन्स उनकी राइड क्वालिटी में क्या अंतर है या नहीं वो हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे जब इसे राइड करेंगे. So 42 which I'm riding right now, it's for 1.55 lakhs and the classic Java which is for 1.64 lakhs, and both these prices are ex-showroom. Prices are, I think, very competitive, but then again, it depends upon the performance and the kind of competition, the kind of segment this is in, and for that we have to evaluate how does this ride. Let's see these two bikes. Now we'll talk about the ride of this bike. The Classic is a comfortable ride, and the kind of seating, the kind of suspension setting this has, which is also variable. We can adjust it according to your choice. Or I was really impressed with the kind of behavior this had. This showed on the road or bad surfaces, and that was something which you would enjoy. That will grow on you. बट हाई स्पीड हैंडलिंग की अगर हम कॉर्नर की बात करें जहां मोड़ते वक्त, वहां पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं महसूस होगा. तो ये वैसे भी एक लाइफस्टाइल तरह की बाइक है. सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ ट्रैक बाइक, यू कैन नॉट टेक दिस ऑन द रेस सर्किट. लेकिन ये हैंडलिंग जो बैड सर्फेसेस के ऊपर जिस तरीके से करती है वो इसे काफ़ी एडवेंचर और मज़ेदार वाली कैटेगरी में इस बाइक को डालता है. एज आई टोल यू दिस इज़ द प्रोटोटाइप. तो वहाँ पर इंजन डिलीवरी जो मुझे थी पावर की वो थोड़ी सी अनइवन लगी, जहाँ आई होप जावा वर्क्स ऑन दैट एज वेल. जो परफॉर्मेंस या जो बिहेवियर इंजन का था वो थोड़ा सा और स्मूथ रहता तो और ये मज़ेदार बाइक रहती. टॉप स्पीड की अगर बात करें तो विथ माई वेट विच इज़ अराउंड 90 kg, वहाँ पर 120 की स्पीड पर जाकर ये थम गई थी. वहाँ उसके ऊपर दिस इज़ नॉट गोइंग, बट देयर वर सम वेरिएशंस इन द स्पीडो ऑल्सो. तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है जैसा हमें पता चला है. लेकिन जैसा मैंने बताया हैंडलिंग के हिसाब से आम सिटी राइडिंग और ऊबड़ खाबड़ सड़कों के ऊपर दिस फैंटास्टिक. नाउ विल टॉक अबाउट 42. 42 इज़ मोर ऑफ अ स्क्रैम्बलर काइंड ऑफ बाइक जो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगी जब मैं ऊबड़ खाबड़ बहुत ही ख़राब सड़कों से उसे लेकर दौड़ाया उसे. द काइंड ऑफ कैरेक्टर इट शोड ऑन दोज रोड्स वाज फैंटास्टिक. मुझे बहुत ही मज़ेदार लगी. जैसे मैंने कहा स्क्रैम्बलर टाइप की फील उसमें आ रही थी और अनइवन बैड रोड के ऊपर भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो चली जा रही थी. उसमें भी अगर मैं बात करूँ बिकॉज बोथ बाइक्स शेयर द फ्रेम, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फॉर राइडिंग पोस्चर एंड थोड़ी बहुत ज्योमेट्री. तो वहाँ पर भी आपको हाई स्पीड कॉर्नरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको महसूस नहीं होगा. दैट इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक एज फार स्ट्रेट लाइन इज़ कंसर्न. तो वहाँ पर यही कहूँगा कि 42 छोटी राइड्स के लिए मज़ेदार है, लंबी राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा आरामदेह अभी नहीं लगे. वन एस्पेक्ट विच रियली इम्प्रेस्ड मी बोथ Classic Java and the 42 is this. So there's 280 mm disc brake on this bike with ABS और company काफ़ी confident है. That's why Continental, which developed this ABS for Java, they had also come and shared their version of story how it was developed. But overall, if I say
while riding this bike, I think braking was really impressive. Gear shift is something which is impressive too. That stood out. The performance is nice, it is crisp, and while riding the 42, I really felt that because I was going through rough patches and I was changing gears again and again. I was trying to have as much fun as possible, and the gear shift really impressed me there. So we'll come back to the same question which we asked at the beginning of the story. Millennials कैसे react करते हैं इस बाइक को लेकर जो कि हेरिटेज और क्लासिक वाली कैटेगरी में थी और उनके पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी. But interesting thing which Java told us that 90% of the booking they got was the customers are below 30 years age group, and that is very interesting. I think how youngsters are reacting to this kind of classic looking, retro looking and vintage kind of beauty, and that is very promising also as far as Java's comeback is concerned. अब आप सोच रहे होंगे कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो बिंदु यही विश्राम करती है कि how company provides them the bike with the maximum kind of refinement, whatever they can work on, और आफ्टर सेल सर्विस कितना भरोसेमंद कंपनी कर पाती है, इनका डीलरशिप नेटवर्क कितना स्ट्रांग हो सकता है. बिकॉज इनिशियली ऑब्वियसली दे हैव गुड ट्रैक्शन, लोगों में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द बाइक, और वहाँ पर कंपनी को काफ़ी काम करना पड़ेगा बीइंग अ न्यू कंपनी. और वहाँ कीमत के हिसाब से एक अच्छा ये सौदा है ही, लुक के हिसाब से अच्छी है, हैंडलिंग में थोड़ी और बेहतरी गुंजाइश मुझे लग रही है, लेकिन ओवरऑल पैकेज तो मज़ेदार है. दैट मीन्स कंपनी को अब इसे और बेहतर तरीके से बनाकर customers को पेश करना होगा. And if you're watching this video on YouTube, do let us know how did you feel about this bike and our review, our video, and also subscribe, like and share our videos. फिलहाल इतना ही. Take care, drive safe, ride safe, wear helmet, wear seat belts. Bye bye.